بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، موجودہ حکومت نے ضیاء الحق کے دور کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اڈیالہ جیل میں قیدی 804 کی کال پر احتجاج کی کال دی گئی۔ پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس نے وحشیانہ تشدد کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ پی ٹی اے کے نہتے لوگوں پر آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج، ربڑ بلٹس کا استعمال، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے پر بھی اندھادھند حملے، سینکڑوں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات، صحافیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خواتین ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، پولیس کا وحشیانہ وحشت کی ایسی تاریخ رقم کی کہ جیسے پولیس خاندان شریف کی غلام ہے۔ شاید ضیاء الحق میں بھی ایسا تشدد نہ ہو، اوپر سے آزادی صحافت کے علمدار بھی زمین بوجھ ہو گئے۔ سارا دن پولیس کا وحشیانہ تشدد رہا۔ خواتین، بزرگوں، پنڈی پر عمران خان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما احتجاج کرتے رہے۔ صحافیوں کو بھی پکڑا گیا، زبردستی اٹھا کے گائے بھینسوں کی طرح ڈالا گیا، لیکن میڈیا نے ایک چیز نہیں دکھائی، ایک نہیں سنائی۔ پاکستان میں ضیاء الحق کے بعد اگر صحافت پر قدغن لگی ہے، صحافت پر دہشت ڈالی ہے، تو وہ موجودہ حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، خود میں نے ان کے پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوریج کی۔ نہ عمران خان کی حکومت نے کبھی راستہ روکا، انہوں نے بغلول سا فضول سا آدمی وزیر اعلیٰ لگا دیا تھا، عثمان بزدار، یہاں تک کہ انہیں ہر فری ہینڈ دیا گیا۔ لیکن بہرحال وہ بات تو اچھی تھی، لیکن اب پاکستان میں جس طرح صحافت کی تدفین ہوئی ہے، نثار عثمانی مرحوم کہتے تھے صحافی جج سے زیادہ غیر جانبدار ہوتا ہے، پر میڈیا اتنے دباؤ میں ہے، ورکنگ جرنلسٹ تو ہمت کرتے ہیں لیکن سیٹھ سودا کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس مناظر دیکھنے کے بعد جس طرح پاکستان کی عوام باہر نکلی، جیسے نہتے لوگوں پر تشدد ہوا، شیلنگ سے گرتے گراتے لوگوں کو، ادھر کی خواتین نے پنڈی کی عوام کو سلام کے انہوں نے انہیں پانی پلایا، بے ہوشوں کو اٹھایا، درجنوں گرفتاریاں، زخمی ہونا، پولیس کی گرفتاری، یہ بھی ایک تاریخ کا بدترین دن ہوگا۔ لیکن کاش اس حکومت سے ڈکٹیٹر بہتر تھے۔ میں نے خود پنجاب یونین آف جرنلسٹ پریزیڈنٹ 2007 میں مشرف کے خلاف 3 ماہ کے قریب تقریباً احتجاج کیا، جس میں سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو تشریف لائی، بانی پی ٹی آئی عمران خان لائے، اور خود شہباز شریف، نواز شریف بھی آئے۔ لیکن آج جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پرامن احتجاج کا حق چھین کے ضیاء الحق کی یاد کو تازہ کر دیا، اور ان کی صاحبزادی نے جس طرح پولیس کا غلط استعمال کیا، اس پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ پولیس اس وقت خاندان شریف کی ذاتی غلام ہے۔ وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی علاوہ پنڈی میں پی ٹی اے کے کارکنوں کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ تو کیا اب جس پولیس نے ظالمانہ تشدد کیا ہے، وحشیانہ تشدد کیا ہے، اور جس میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کا، کیا ان کو بھی کوئی ایوارڈ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے غلام ہونے کا ثبوت دیا، اور ان میں بھی شامل ہوں۔ میں آپ کو بری الذمہ نہیں کہتا، ہم آپ تک سچ مکمل نہیں پہنچا سکتے، سچ نہیں دکھا سکتے۔ عرش شریف کی شہادت کے بعد صحافیوں کو عملاً خاموش کروا دیا گیا۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز دیتی ہے، جو آواز دے رہے ہیں آزادی صحافت کے لیے، ان کو بھی سلام۔ پاکستان میں جن جن صحافیوں کو گرفتار کیا گیا اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں میں۔ یہ ظلم ہے، یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے، یہ آزادی صحافت پر قبضہ کیا ہے حکومت نے، اور ہم اس قبضے کے خلاف شاید ایمان کی سب سے کمزور نشانی کے دل میں برا جانو، یہ سٹیج آ چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحافیوں کا بھی احتجاج جاری ہے۔ تحریک انصاف کا راولپنڈی لیاقت باغ میں پرامن احتجاج، صوبائی وزراء، ارکان قومی اسمبلی اور اسمبلی سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ کارکنوں کو حفاظتی سامان بھی فراہم کیا گیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، ان کی طرف سے سامان بھی فراہم کیا گیا تھا۔ کارکنوں نے سڑک پر سے اس دوران پولیس نے پورے اسلام آباد پنڈی لیاقت باغ جانے کو سیل کر دیا گیا، ترنول میں لگا دیا گیا، مری سے آنے والے راستوں میں لگا دیا، جیلڈی والے راستوں میں لگا دیا گیا۔ لیکن ایسا انتظام کیا کہ عوام
अपने घर में जेल जैसा कैद हो गया। जो बाहर निकले उस पर शैलिंग और पुलिस वाले टूट पड़ते थे। यकीनन ये चंद पुलिस वाले पुलिस की बदनामी का बायस बन रहे हैं, जो अपनी हुकूमत को ताहयात रखना, अपनी पुरकशी तैनाती चाहते हैं। ऐसे ही लोग महकमा पुलिस के लिए बदनाम है, ना सिर्फ इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, ना सारा दिन अवाम और पीटीआई के रहनुमा और पुलिस में आंख मचोली रही। इस दौरान दर्जनों नहीं शायद सैकड़ों दफा लाठी चार्ज किया गया हो, शैलिंग की गई हो, गोलियां चलाई गई हो, सीधी गोलियां चलाई गई हो, जिससे सदरदार है। दूसरी तरफ केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, जिसे इमरान खान ने कहा था आप करोगे, उन्हें भी इस्लामाबाद पंजाब के दाखिल आ गया, लेकिन लियाकताबाद जाने नहीं दिया गया। पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स थी और अली अमीन गंडापुर के साथ भी, क्योंकि उनकी सुबाई वजीर आला है, प्रोटोकॉल था, और लेकिन वो वापस चले गए। अगर वो आते तो पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली बज़ाहिर बादी नजर में ये नजर आ रही थी कि मुल्क में खून खराबा किया जाए। कोई खुदा ना खाता पुलिस वाला, वो भी हमारे भाई हैं, अगर वो उन्हें नुकसान होता वो भी अवाम का नुकसान था। पीटीआई के लोग मरते, औरतें, खवातीन, बुजुर्ग मरते, जिस तरह सीमा याब, ताहिर और जो कुछ लोगों ने किरदार अदा किया वो काबिल तारीफ है। अली अमीन मुंडापुर का कहना था कि आगे जाकर दमादम कलंदर होगा, लेकिन देखें कि तमाशा नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने जिस किस्म का वहशियाना आवाम पर हमला किया, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सारा दिन तो यही रहा कि अली अमीन गंडापुर लियाकतबाद पहुंचेंगे, बार बार ये अनाउंसमेंट होती रही, लेकिन हालात इस कदर थे कि लगता था कि पिंडी में पूरे पाकिस्तान की पुलिस बुला ली गई है। अली अमीन गंडापुर ने रास्ते में कई रुकावटें उठाई, उनके साथ लोगों का बहुत बड़ा इज्तिमा था, एक बहुत बड़ा जुलूस था, लेकिन वहां पहुंचने में वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि पुलिस ने रावलपिंडी में 25 और इस्लामाबाद में 9 मकामात को मुकम्मल सील कर दिया कि उधर चिड़िया भी पर ना मारे। मरी रोड, फैजाबाद समेत दीगर मकामात पर कंटेनर लगा दिए गए। तमाम रास्तों को कंटेनर, डंपर, ट्रक और हार्डवेयर तारें लगाकर बंद कर दिया गया, जैसे कि वो उधर वीजा लेके जाने की जरूरत है। रावलपिंडी लियाकतबाग में सिर्फ क्या खौफ था कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन अवाम को जबर से कब तक रोकोगे, कब तक नहती अवाम पर रबड़ बुलेट चलाओगे, गोलियां चलाओगे, शैलिंग करोगे, लाठी चार्ज करोगे। ये पुलिस वाले ने एक मिसाल कायम कर दी है। डंपर लगाकर और हार्डवेयर तारे लगाकर बंद किया था। इंतजामिया ने लियाकतबाग को ताला लगा दिया और 4000 से ज्यादा पुलिस और एंटी राइट सामान के साथ तैनात कर दिया कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन हमला करने वाला है, जबकि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न था। 2 दिन के लिए दफा 144 लगा दी गई। ये दफा 144 के 1000 खुद टोटे करते हैं। रेंजर तैनात, सियासी इज्तिमात, धरने और जलसे नहीं किए जा सकेंगे। अमन और अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात, मेट्रो बस सर्विस तक बंद कर दी गई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली गंडापुर ने बुरहान इंटरचेंज से ही वापस चले गए। अगर वो वहां आते तो बहुत बड़े कत्लो गारत की मुबैना तौर पर साजिश तैयार थी, कत्लो गारत की साजिश तैयार थी। इस पर उन्होंने वापस जाके पिंडी को खून में नहाने की साजिश से, मुबैना साजिश से बचा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों ने और पीटीआई के वर्करों ने साबित कर दिया कि पुलिस के तमाम हथकंडे, जुल्म ज्यादती नाकाम हो गई है। पीटीआई के कारकुनों, रहनुमाओं की 2.25 साल, इन लोगों को भी सलाम है, खवातीन को जो कुर्बानियां दे रहे हैं और डर नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे, मुकाबला करते जा रहे हैं। कारकुनों में लियाकतबाग पहुंचने का ऐलान किया था। कारकुनों में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने साबित कर दिया कि वो हर अव्वल दस्ता है, जबकि पिंडी के लोगों ने भी बाजी ले दी। और पंजाब पुलिस, और जब कारकुन पीटीआई और पंजाब पुलिस आमने सामने आई तो फिर पुलिस की शैलिंग के जवाब में पीटीआई के कारकुनों ने भी पथराव किया, क्योंकि पुलिस अवाम बेशुमार लोग बेहोश हो गए। लाठी चार्ज से, शैलिंग से और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह शैलिंग और फायरिंग की गई, इसकी मिसाल मादी में नहीं मिलती। ये क्या पुरअमन जमहूरियत में एहतजाज हक नहीं? क्या पीडीएम खुद एहतजाज नहीं करती रही? क्या नवाज शरीफ
کو जब निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट से नाअहल किया गया, सजा याफ्ता मुजरम थे, तो वो पूरे रास्ते जीटी रोड से एहतजाज करते आए। उस वक्त तो कोई रास्ता नहीं रोका गया। जब मरियम नवाज, मौलाना फजलुर पीडीएम में एस्टेब्लिशमेंट और दीगर अदारों पर हमला आवर करते थे तो उन्हें नहीं रोका गया। शायद वो इमरान खान की गलती थी कि उन्होंने उस्मान बुजदार जैसे लगाया, लेकिन मुसलसल 15 माह जेल में रहने के बाद भी इमरान खान ने डयाला जेल से अवाम को पैगाम दिया कि जिस तरह उन्होंने हुकूमत की फसादियत, जुल्म और पुलिस गर्दी का मुकाबला किया है, तारीख में ये हीरो होंगे। उन्होंने कहा कि हम ने 2 खानदानों से कब्जे की जो लड़ाई खिलाफ की है, इससे आज़ादी लेकर रहेंगे, लेकिन वो जिस तरह चाहते हैं कि वो इनसे आज़ादी हो, लेकिन वो अपने मुल्क में खून रेजी नहीं होने देंगे। वो हुकूमत की ऐसी साजिश नहीं होने देंगे। पुलिस रेंजर यहाँ अवाम आमने सामने आए, लेकिन क्या पुलिस का यही काम रह गया कि पीटीआई को ख़त्म करें? याद रख लें, जब 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई को अवाम ने कामयाब करा दिया, तो फिर ये हुकूमती शैलिंग, झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, ये इससे अवाम का जज्बा ख़त्म नहीं होगा। आज़ादी की जो शम्मा चलाई गई है, सहाफ़त को तो आपने मुर्दार कर दिया है, सारा दिन कुछ नहीं चलने दिया। और मेरे साफी भाइयों को भी गिरफ्तार किया, पकड़े, गाड़ियों में फेंका, आगे जाके मारा पीटा, दुनिया टीवी के लोगों को मारा, और भी लोगों को मारा। समी इब्राहिम के बारे में कहा जा रहा है उन्हें पकड़ा और फिर कुछ देर बाद सोच दिया। समी इब्राहिम और मैं इकट्ठे काम करते रहे हैं, वो हार्ट पेशेंट है, उसका बाईपास हुआ है। उस जालिमों, तुम कब तक जुल्म करोगे? आखिर जुल्म की ये रात ख़त्म होनी है। और जितने सहाफ़ियों पर जुल्म किया, हम इसके लिए सहाफ़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये पहली दफ़ा नहीं, तुम्हारे ज़ियाउल हक ने भी आजमाया, तुम्हारे मुशर्रफ साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब आजमाया कि सहाफ़ियों से हमेशा उनकी आज़ादी छीनी, लेकिन हमने जद्दोजहद से, तवील से आज़ादी लिया। हाँ, कुछ ऐसे बेरूपिये पैसे के बेत पर मीडिया में आ गए हैं जो अपने नाजायज़ पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाफ़ियों को सहाफ़त से रोकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सहाफ़ियों ने साबित कर दिया कि वो सच दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। पॉलिसी ऊपर से आती है, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर कदगन का ख्वाब आपका पूरा नहीं होगा। और पीटीआई के रहनुमाओं के साथ या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लैबैक, किसी के साथ भी ज़्यादती होगी तो सहाफ़ी आपको सच बताते दिखाते रहेंगे। हाँ, दिखा ना सके तो वो मुलाज़मों की भी कुछ मजबूरी होती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब एक ऐलान कर दें, आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाकर एक खबर ना चलने का आप अवार्ड किसको देंगे, इसका ऐलान ज़रूर करिएगा। हाँ, जो लोग हमारे पीटीआई के भाई बहनियाँ ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए हमदर्दी है, लेकिन एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दद नहीं होता। लेकिन पुलिस अफसर के चंद अफसरान ने महकमा पुलिस को बदनामी का बास बन गए हैं। इसी पुलिस में अच्छे अफसरान भी हैं जो कहते हैं मैंने गलत हुक्म नहीं मानना, मुझे ओएसटी कर दिया जाए, लेकिन पुरकशिश ओहदे की तैनाती की हवस अफसरान को न सिर्फ अपने महकमे की बदनामी का बायस बनते हैं, बल्कि अवाम पर तशद्दुद की वजूहात भी यही अफसर बताए जाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।